Hello students, welcome to the biology classes. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is the living world. Dear students, as we all know that there are different type of living things and non-living things are present around us. So the first question arises, how can you distinguish between a living thing and non-living things? Uh, बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि आप जैसे लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो सबको पता है जैसे लिविंग थिंग्स जो हैं वो उसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, दे आर अलाइव। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज ए लाइफ? So dear students, life is a unique complex organization of the molecules expressing through the chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptations and reproduction. So बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जिसके थ्रू जो आपके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है एक इंडिविजुअल के अंदर जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सिवनेस है, अडेप्टेशंस हैं और रिप्रोडक्शन जो है टाइप जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करता है। ठीक है, सो वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच शो दीज करेक्टरिस्टिक्स, ओके, इफ द ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, डेवलपमेंट, responsiveness, adaptations and reproduction, so we can say that it has a life, or we can say that it is a living organism. And all these characteristics are very complex processes, or we can say the actually very complex and appear due to very complex organization of molecules, and they are all expressed through the chemical reactions. Okay, so these characteristics, example, growth, development, responsiveness, adaptations and reproduction, are expressed through chemical reactions, and that is known as life. Okay, so the organisms which show these characteristics are living, and the organisms which cannot show these characteristics are non-living things. Okay, so we can say that the living organisms are self-replicating, which evolve according to the, if there is change in any environment, and if there is change in an environment, okay, they evolve, they are self-regulating, and they interact with the external environment, and if there is any change in the external environment, that is known as stimulus, so they can show a particular response. Okay, so the organisms, so we can say that the living organisms are self-replicating, they can evolve according to the environmental change. Okay, they are self regulating, and they interact with the environment and show response to the external stimulus. Dear students, there are different properties of a living organism. Okay, for example, growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. Dear students, these are the properties of the living organisms. These properties found in the living organisms which make them different from the non-living things. Okay, we are going to discuss these properties step by step. So dear students, the first property is growth. Okay, dear students, growth is increase in the number and mass of a cell, okay, by cell division. Beta, when we talk about a cell, ठीक है ना, there are some organisms which are made up of only single cell. भाई कुछ organism ऐसे भी हैं जो single cell के बने होते हैं, तो वो growth कैसे शो करते हैं? ठीक है ना, if an organism is made up of single cell, so if a cell increase in the size or cell divide, that is known as growth. But जब हम बात करते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की, ओके, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उस केस में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके अंदर उनके जैसे हाइट इंक्रीज हो गया, ठीक है, वेट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द हाइट, इंक्रीज इन द वेट, ठीक है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो वो जो है वो आपकी ग्रोथ में काउंट करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो ग्रोथ है वो टू टाइप की होती है, जैसे एक होता है डेफिनेट ग्रोथ, एक होता है इनडेफिनेट ग्रोथ। भाई जैसे प्लांट हैं, द प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं,
ना, उनका हाइट इंक्रीज होता रहता है, जब तक वो सर्वाइव करते हैं तब तक उनका हाइट इंक्रीज होता है, तो उनके अंदर इनडेफिनेट ग्रोथ है। बट जब हम एनिमल्स का बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल्स, दे स्टार्ट टू ग्रो व्हेन आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी। जब वो मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं उसके अंदर ग्रोथ रुक जाता है, मतलब उनका हाइट इंक्रीज नहीं होता। जैसे हाइट इंक्रीज नहीं होगा, उनका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना, तो साइज इंक्रीज नहीं होगा, तो वो जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट ग्रोथ। हाँ, लेकिन उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ चलता रहता है बेटा, जैसे कि उनके अंदर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओल्डर सेल्स जो है उनका वो जो है रिमूव होती रहती हैं, यानी कि इंटरनल ग्रोथ चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन एक्सटर्नली हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी। ओके, इनिशियली तो हम पता इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वन जब एक ऑर्गेनिज्म एनिमल जो है स्मॉल साइज का होता है, मतलब जो यंग होता है तो उसका साइज स्मॉल होता है, जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है उसका मतलब साइज इंक्रीज होता है, उनका हाइट इंक्रीज होता है, तो वो लेकिन जब मैच्योर हो जाता है, जैसे ह्यूमंस के केस में 20 to 25 ईयर के आसपास जब उसका एज होता है, ठीक है ना, तो उनका हाइट इंक्रीज होना रुक जाता है, तो वो डेफिनेट ग्रोथ में है। किसमें आता है बेटा? डेफिनेट ग्रोथ में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि भाई जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ शो करते हैं भाई, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर सम नॉन लिविंग थिंग्स विच ऑल्सो शो ग्रोथ। यहाँ पर जो ग्रोथ होगी नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं ना, मिट्टी के जो टीले होते हैं, या फिर आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं माउंटेन्स के अंदर, उनके अंदर जैसे उनका जो एक्सटर्नली जो मटेरियल उनके ऊपर डिपॉजिट होता है, तो उनका साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स के केस में जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है, लेकिन लिविंग थिंग्स में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में जो ग्रोथ है वो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो है ग्रोथ होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण, या फिर सेल का साइज इंक्रीज होने के कारण होता है। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होने के कारण होता है। इसमें क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा, इसीलिए जो है जो ग्रोथ है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ वी कैन नॉट एबल टू से दैट दिस इज ए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। ओके, हाँ, आर लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, बट some non-living things also show growth, so that why growth is not a defining property, ठीक है। तो इसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं, on the basis of we are not able to say that this is living or non-living thing. Second is reproduction. We all know that reproduction is the process through which living organisms produce new individuals, okay, which are similar to them. भाई ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 टाइप का पढ़ा है, ये जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रीवियस क्लासेस में हमने इनको अच्छे से स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स जो हैं जितने भी हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होता है थ्रू फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशंस, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमेट फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो का, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, भाई वो तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात थी, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स we all know that the formation of new cells occurs by the cell division। भाई एक सेल जब डिवाइड करती है, एक सिंगल सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है माइटोसिस के केस में। तो यहाँ पर ग्रोथ में भी ऐसा ही, एक्चुअली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, क्योंकि दोनों ही सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं, बोथ ऑकर्स थ्रू द सेल डिवीजन, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ रिमेंबर। भाई लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, मतलब एक एक्सेप्शन है कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म,
बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूल है, ठीक है ना, म्यूल एंड जैसे आपका वर्कर हनी बी हैं, इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, सो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस or not able to reproduce, so that's why reproduction is also not a perfect defining property। जैसे उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ में भी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ शो कर रही थी, वैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू शोइंग रिप्रोडक्शन, सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यह भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जैसे ग्रोथ की तरह, ठीक है। सो रिमेंबर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी आर नॉट एबल टू से दैट इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, क्यों? नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। बेटा एक्चुअली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस ओकर्स इन ए सेल। एक सेल का जब हम बात करते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं, ठीक है। लिविंग सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चलेंगे उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे बेटा। ओके, सो द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विच ओकर्स और विच टेक प्लेस इनसाइड ए लिविंग सेल और ए लिविंग सिस्टम आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। ओके, and only biochemical reactions, these biochemical reaction occurs only in the living cells, okay, or living system, so that's why it is also a defining feature of the living organism। so बेटा living organisms जो है सभी के सभी, ठीक है ना, वो क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शन चलती हैं। इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म लार्ज बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक इनटू सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, ओके। वेरेज इन केस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस के केस में सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स join टू फॉर्म लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो मैं सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में लार्ज जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, और एनाबॉलिक रिएक्शन में स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स जॉइन होके लार्ज बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, बेटा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उसमें सिंपल कंपाउंड मिलकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो फॉर्मेशन हो रही है, मतलब उसमें एनाबॉलिक रिएक्शन है। और आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ा था बेटा 10th क्लास में। रेस्पिरेशन में क्या था? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है बेटा। कैसा रिएक्शन है? कैटा। तो ये सारे रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलती हैं। सो दैट्स वाई ये जो है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेटा। हम सबको पता है कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, और जो सेल्स होती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनता है। वो सेल जो है हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, ठीक है, वर्क करती हैं। दे वर्क इन हाईली कोऑर्डिनेटेड वे एंड मेंटेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा जैसे हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स हैं, उनके अंदर वो भी हाई अंदर से भी बहुत हाईली ऑर्गेनाइज होती हैं। उसमें अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें यानी कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। सो दैट्स वाई cellular organization is also a defining feature of the living organism. Only living organisms show this type of organization, ठीक है बेटा। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सेल के बने होते हैं, ठीक। और लास्ट आता है आपका बेटा कॉन्शियसनेस। बेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइड प्लांट, एनिमल, वो सभी के सभी बेटा रेस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है ना।
एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है भाई, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स हैं, या फिर एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन वगैरह है, तो अगर कुछ भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में तो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी चेंज हैं एनवायरनमेंट में, इनको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो एक स्टिमुलस है, हम उसको रिसीव करेंगे, ठीक है ना। हमारे स्किन के अंदर टेम्परेचर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन वी रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलस, और according to this stimulus we show the response. Okay, so we can say that we are conscious to our environment. अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है we easily detect, so इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा हम कॉन्शियस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे प्लांट्स की, तो प्लांट जो है टुवार्ड्स द लाइट ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम प्लांट को जिस भी साइड से लाइट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसी साइड वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका प्लांट है मिमोसा पुडिका, छुई मुई, अगर हम इसको टच करते हैं, ठीक है, तो इसकी लीफ फोल्ड हो जाती हैं। अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, तो और उस इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो स्मॉल साइज इंसेक्ट्स और स्मॉल साइज एनिमल्स को कैप्चर कर लेते हैं बेटा, जैसे उनके कांटेक्ट में आते हैं उसको कैप्चर कर लेंगे। सो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात पता लगती है कि भाई जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो consciousness, they are aware of their environment, so that's why it is a defining property। क्योंकि बेटा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऐसा करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है एनवायरनमेंट में कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करती है स्टिमुलस के प्रति। सो दैट्स वाई कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई एनी ऑर्गेनिज्म विच शो responses or which is conscious, okay, it is living. So dear students, in case of humans we also aware of ourselves। हम अपने आप हम जो जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट होती है। वी ऑल नो डैट व्हाट इज गुड फॉर अस, what is bad for us, okay, and we aware of our body mind, okay, हम अपने बॉडी और माइंड के प्रति अवेयर हैं, ठीक है। सो वी ऑल्सो हैव अ सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज विच ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो आई होप you understand. If thank you.